आप एक काम कर सकते हो, उसका पर्पस क्या है वो ब्रीफिंग करो, वो वहीं से बतला दीजिएगा। इसको भी अंदर ही रख लेंगे। पीछे हो जाइए, पीछे से This is the first setup which is dedicated to oncology. Normally सब कुछ होता है ब्रेन के हिसाब से, इसके हिसाब से, but this setup is completely advanced के लिए हम लोग कर सकते हैं. This has the capacity to detect it early, in the early stage. हम लोग कोलैबोरेशन का दूसरे से, लेकिन कोलैबोरेशन में तो गरीब लोगों का ध्यान रखते नहीं हैं, हम लोग ने अपना ही काम किया। एक यही मशीन थी जो अपनी नहीं थी, हाँ, लेकिन दूसरे की थी, हम लोगों ने उसे काम किया। चलिए ना. इसे वही लेनी इलेक्शन एक मिनट थोड़ा पीछे बहुत महंगी मशीन है। This is highly precise, very specific. So if tumor अगर 1 centimeter का है, we can just target वो tumor उतने ही, and the normal जो adjacent areas है, they get treated. This is very highly precise, very specific. ये हम लोग का तीसरा टाटा मेमोरियल में शायद 3 हो, बाकी तो 3 होगा नहीं। I think Eastern India में I think our department radiation is the largest department because we have got 5 radiology machines. We have 3 linear extractors, we have 1 cobalt machine, and we have 1 platinum. 80-85 साल उम्र है, लेकिन हम लोग से मिलके दौड़ते हैं 9 बजे सुबह से 6 बजे शाम के। डॉक्टर मनीषा जी हैं, ये डायरेक्टर मेडिकल है, अस्पताल ही चलाती है, इन्हीं के अपना सब मरीजों का ख्याल रखती है। डॉक्टर एल सी डी मेडिकल, लेकिन एक भी मरीज हम लोग कम होने वाला नहीं है। सच को बढ़ाई है, So this is actually CT simulator machine. So this is a different मतलब machine जो normal CT scan होता है, different है ये machine. Because हम लोग का जब planning करते हैं सर radiation so precise. First हम लोग patient इसी machine पे call करते हैं. And we मतलब same patient को proper alignment करते हैं with the help of laser. We have laser also in this machine. तो after proper alignment हम लोग उसका एक immobilization device कहते हैं which is called as orphan. वो patient के एकदम customized orphan बनता है. And ताकि patient का movement during treatment एकदम negligible हो, नहीं के बराबर हो. So for this first step is मतलब हम लोग CT simulation करते हैं. तो in the same position we acquire CT images. From मतलब जो भी हम लोग का organ of interest है, part of interest है, वो हम लोग लेते हैं image. And then is a 3D construction होता है. And finally we do this image is sent to our planning system, contouring workstation we call. And वहाँ पे we do contouring and planning, everything is done. And when we approve, ये plan is appropriate for this patient, then we call patient for the treatment and treatment is delivered. So this is not very simple, so it's very precise, very accurate.
These are all computerized. So once we plan कि ये plan होना चाहिए इस मरीज के लिए, this is the best plan, then वो कोई change नहीं कर सकता है. And these are all computerized results. It's all computer controlled. And when the patient अंदर में जब radiation होता है, nobody is allowed to stay inside. It's only the patient who is supposed to stay inside. And we watch from the camera and all. This patient मतलब अच्छे से treatment हो रहा है नहीं हो रहा है. एक बार प्रोग्रामिंग कर दिया तो Yeah. then it's fine. Yes. आइए सभी So proper patient एकदम straight है कि नहीं, body aligned है कि नहीं, and this is the headrest. ये भी headrest है for different size का, so that patient is comfortable during the CT supination. Because यही plan, यही position वो everyday patient को treatment radiation machine पे देना है. So the patient का positioning और सब कुछ alignment should become accurate, comfortable, and it should be reproducible also. जो यहाँ हमारे मुख्य अतिथि बिहार के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी सभा में आ चुके हैं। अब मैं सभागार में उपस्थित सभी लोगों से अनुरोध करती हूं कि वो खड़े हो। अब मैं इस सभागार में उपस्थित लोगों से एक बार फिर अनुरोध करती हूं कि वो हमारे राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे गाये तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद। हमारी संस्कृति में जलते हुए दीपक को ज्ञान और दिव्य प्रकाश के प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जाता है और इसीलिए यह शुभ शुरुआत का प्रतीक है। अब मैं मंच पर आसीन हमारे मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों से निवेदन करती हूं कि वे दीप प्रज्वलित कर इस समारोह का शुभारंभ करें। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, चोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को।
हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र आजरेकर जी आए हैं। आपकी उपस्थिति ने इस अस्पताल परिसर को, इस कार्यक्रम को गौरवान्वित किया है। अतः अब मैं महावीर कैंसर संस्थान के प्रशासनिक निदेशक डॉक्टर प्रोफेसर बी सान्याल जी से आग्रह करती हूं कि वे अंगवस्त्रम और राम दरबार स्मृति चिन्ह भेंट कर हमारे मुख्य अतिथि का सम्मानित करें। संस्थान में 3 नई आधुनिक मशीनों का लोकार्पण हुआ है। यह हमें कैंसर की संपूर्ण चिकित्सा एक छत के नीचे, जो कि हमारे संस्थापक एवं सचिव आचार्य किशोर कुणाल जी का लक्ष्य है, उसे पूरा करने में मदद करेंगे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मैं इस महावीर कैंसर संस्थान में महावीर कैंसर संस्थान तथा महावीर मंदिर न्यास की ओर से बिहार के यशस्वी माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत करता हूं। और महावीर कैंसर संस्थान की स्थापना 1998 में हुई थी। ये 26 साल की अवधि में इसने लाखों गरीब मरीजों का इलाज किया है। लाखों मरीजों का इलाज किया है। हमारे अस्पताल की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ 80 से 90% गरीब मरीज आते हैं। दोपहर में कभी कोई आता है तो देख करके आश्चर्यचकित होता है, आश्चर्यचकित हो जाता है कितने मरीज गरीब क्यों आए। और ये देश का शायद एकमात्र अस्पताल होगा जहाँ मरीज आता है, मुफ्त तो शायद बहुत जगह करते होंगे, जिसको 10 से 15 हज़ार रुपया महावीर मंदिर न्यास की ओर से डायग्नोसिस के लिए दिया जाता है कि उसके पास पैसा नहीं हो तो उसका इलाज नहीं रुके। और जैसा कि पहले भी हम लोग निवेदन कर चुके हैं, कलाम साहब के आने के बाद हम लोग 18 साल तक के बच्चों का निःशुल्क उपचार करते हैं, 1 रुपया उनसे नहीं लेते। और हम लोग एक बगल में ज़मीन हम लोगों की है, देश का पहला पेडियाट्रिक कैंसर हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। हम लोगों ने पैलिएटिव केयर सेंटर शुरू कर दिया है। अभी सिपला के लोग आए थे उधर पुणे और बम्बे से, वो उन लोग के साथ कोलेबोरेशन होकर एक बहुत बढ़िया काम होने जा रहा है। तो इस तरह कैंसर संस्थान में आज की तारीख में एक छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और मैं समझ रहा था कि आज तीसरी हो गई MRI लगाने के बाद, लेकिन डायरेक्टर साहब का एक नोट आया है जिसमें लिखा हुआ कि रोबोट सिस्टम जो है उससे और सटीक उपचार होता है। देसी रोबोट का दाम 5 करोड़ और विदेशों से आने वाले का 9 करोड़। जो सबसे अच्छा हो आप लोग अपनी प्रक्रिया प्रारंभ कर दीजिए। रोबोट से सचमुच इससे भी अधिक सुंदर उपचार होता है तो आप लोग करें। ये टीम जो है डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्टर मेडिकल सुपरिटेंडेंट और इतने लोग जो हैं, इनके चलते कैंसर संस्थान के इतना नाम हुआ है। और आज देश में टाटा मेमोरियल के बाद दूसरा सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल बना है। लेकिन गरीब मरीजों की संख्या का यदि उसकी गिनती हो तो हम लोग देश में 1 नंबर पर हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 80 से 90% गरीब मरीज आते हैं। और हम लोगों ने महावीर मंदिर ने पहला काम किया कि धर्म को परोपकार से जोड़ा। शुरू में कुछ बाधाएं आई, लोगों ने कहा कि हम लोग मंदिर का पैसा दुरुपयोग कर रहे हैं, सेकुलर काम में खर्च कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को सबसे अधिक समर्थन या सहानुभूति या यश मिला 3 अस्पतालों से, जिसमें कैंसर संस्थान का सबसे बड़ा योगदान है, सबसे अधिक नाम है। हम लोग तो यही कहते हैं कि जो कुछ करना हो कीजिए। महावीर मंदिर पटना में द्रौपदी का अक्षय पात्र जो रहा होगा भूल कर आ गया है। कभी पैसे की कमी नहीं होती है, हम लोग सब काम करते जाते हैं। और हम लोग अभी 2 सबसे बड़े काम और कर रहे हैं। एक अयोध्या में 8 से 10 हज़ार आदमी को प्रतिदिन निःशुल्क भोजन करा रहे हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर विराट रामायण मंदिर बना रहे हैं। और ये कैंसर संस्थान
ये एक परोपकार का प्रतीक है, इसलिए सब इसके लिए इसका बहुत यश है, नाम है, इसके लिए सब लोग आभारी हैं, सब लोग इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। मैं पुनः माननीय राज्यपाल महोदय के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि 3-4 दिनों के अनुरोध पर ही यहाँ आए और हम लोगों को प्रोत्साहन, इससे बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। जय हिंद। 25 वर्षों में महावीर कैंसर संस्थान ने सफलता की ओर कई कदम बढ़ाए हैं और इसी सफर का एक संक्षिप्त उल्लेख देने के लिए अब मैं हमारे चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एलबी सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद ऋचा। परम आदरणीय राज्यपाल महोदय, हम लोगों के अभिभावक आचार्य किशोर कुणाल साहब और इस मंच पर बैठे हमारे कली डॉक्टर सन्याल, डॉक्टर मनीषा जी और सभागार में बैठे सारे अतिथिगण, सारे चिकित्सकगण, कर्मचारीगण एवं मीडिया भाइयों, हमें 25 साल के बारे में बताने के लिए बोला गया। इतिहास, यह सही में एक ऐतिहासिक घटना है। इतिहास के क्रम में ऐतिहासिक घटना है। एक पुलिस पदाधिकारी जो कि अपने काम के लिए जाने जाते थे, एक मिनट सर, उन्होंने एक पुलिस पदाधिकारी एक विजन रखा जिनको कि हॉस्पिटल से कोई मतलब नहीं था। ये उन्होंने उनका एक विजन आया जो हम एक पटना में कैंसर हॉस्पिटल शुरू करेंगे। काफ़ी लोगों ने डिस्करेज किया जो कहाँ से आप चलाएंगे, ये तो इंडस्ट्रीज हाउस चलाते हैं या डॉक्टर चलाते हैं। लेकिन उनका जो ड्रीम था, ही हैड सीन दैट ड्रीम ड्यूरिंग डे टाइम, दिवा स्वप्न जिसको बोलते हैं, दिवा स्वप्न देखे थे। और सबसे बड़ी बात है उस स्वप्न को आज 25 साल पूरा हुए हो गए, तो हमें लगता है इससे बड़ी ऐतिहासिक घटना कुछ नहीं है। आज महावीर कैंसर संस्थान हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट कैंसर हॉस्पिटल में है। टाटा मेमोरियल है, थोड़ा बड़ा है, और चूंकि भारत सरकार का अब है, ये प्राइवेट सेक्टर में इतना बड़ा हॉस्पिटल कोई नहीं है। और इसमें एक और बहुत विचित्र चीज है, जो हनुमान मंदिर के द्वारा स्थापित किया गया था और इसका शिलान्यास जो लिए 14 मई 1995 को दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम जनाब सैयद अब्दुल्ला बुखारी द्वारा उन्होंने शिलान्यास किया। किदवई साहब भी प्रेजेंट थे। तो ये धर्म दूसरी, उसके बाद जो 12 दिसंबर 1998 को जो अस्पताल की शुरुआत हुई, ये बौद्ध धर्म गुरु श्री दलाई लामा के कर कमलों से संपन्न हुआ। इसी से आप अंदाज कर सकते हैं जिसके पीछे कितना बड़ा बैकग्राउंड था। और तभी से लेकर अभी 25 साल में कितने महानुभाव आए इस अस्पताल को सुशोभित किए, जिसमें कई माननीय राष्ट्रपति महोदय थे, अब्दुल कलाम साहब थे, प्रतिभा सिंह पाटिल जी थी, रामनाथ भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति थे। इसके बाद रामनाथ कोविंद साहब गवर्नर के रूप में यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ एक अंजने आहारिका का उद्घाटन किए थे। उसी के 2-4 दिन के बाद उनका नॉमिनेशन प्रेसिडेंट में हुआ था। तो यह एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, यहाँ का आशीर्वाद है जो बहुत लोग आते हैं और यहाँ सुशोभित किए हैं। हम लोग के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो एक परिवार के सदस्य जैसा हैं और हमेशा हॉस्पिटल में जो ज़रूरत होती है पूरा करते हैं। ये करीब 20 करोड़ का उन्होंने अनुदान दिया है, जिसके चलते कि इक्विपमेंट्स खरीदाया है, जिसमें पेट सीटी स्कैन है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट है और गामा कैमरा वगैरह है। और मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रति महीने करीब 4 करोड़ के लगभग रुपया, 3.5-4 करोड़ गरीब मरीजों के लिए मिलता है कैंसर संस्थान में। और इसकी हम लोग व्यवस्था किए हैं, जो हम मरीज को सचिवालय जाना नहीं पड़ता है, यहाँ हम लोग उसका फॉर्मेलिटीज कर देते हैं और उसको मनी आ जाता है। तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के आभारी हैं, जो विकास में हर समय मदद करते हैं। और इसके साथ ही हम लोग की और संस्थाएं हैं मुख्यमंत्री राहत कोष के अलावा। आज आयुष्मान भारत प्रोजेक्ट जो है, जो आयुष्मान भारत माननीय प्रधानमंत्री जी का आयुष्मान भारत प्रोजेक्ट है, आज हमें बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है बिहार का ये इम्प्लीमेंट करने में। दिस इज द फर्स्ट इन बिहार। बिहार का ये पहला हॉस्पिटल है जो 2018 में शुरू किया गया था स्कीम को, और ये 24 है। पिछले 5 सालों में हम लोगों ने हमेशा बिहार में नंबर 1 आयुष्मान भारत के मरीजों की देखभाल के लिए ये नंबर हमेशा सर्टिफिकेट मिलता है, अवार्ड मिलता है। तो ये, लेकिन उसमें मंदिर का बहुत बड़ा सहयोग है। होता है आयुष्मान पैकेज लिमिटेड है,
उसके अनुसार काम करना होता है। लेकिन हम लोग को निर्देश है कुणाल साहब का, ये हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट VS दुबे साहब पूरा सपोर्ट करते हैं और हम लोग उस पैकेज में जो कमी रहती है उसको महावीर मंदिर से पूरा करते हैं। किसी मरीज को कुछ खर्च नहीं होने देते हैं, उनको महावीर मंदिर के फंड से उसका पूरा खर्चा हम लोग बियर करते हैं। इसके साथ और कई संस्थाएं हैं, इंडियन कैंसर सोसाइटी है जो कि जांच के लिए 25,000 रुपया देती है फॉर इन्वेस्टिगेशंस, और ट्रीटमेंट के लिए 5 लाख तक देने की प्रावधान है। उसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं हमारे हॉस्पिटल में, उसका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इंडियन कैंसर सोसाइटी से भी योगदान मिलता है। मैं माननीय राज्यपाल राजभवन को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो 2022 में माननीय फागू चौहान साहब आए हुए थे सभागार में और उन्होंने अपने स्वैच्छिक राशि 50 लाख देने की घोषणा किए थे और उस 50 लाख को हम लोगों ने 10-10 हज़ार करके 500 मरीजों में बांट दिया। पूरा लेखा जोखा लेके राजभवन को सबमिट कर दिए मोबाइल नंबर के साथ। तो राजभवन के प्रति हम लोग आभार व्यक्त करते हैं जो उस 50 लाख जो स्वैच्छिक राशि दी गई थी उसका हम लोग बहुत सही उपयोग करके इसका कवर किए। और इसके बाद भी बहुत सारे डोनेशंस आते रहते हैं, अपने मन से आते हैं। अभी एक एक्स रिटायर्ड आर्मी पर्सनल हैं RN सिंह साहब, वो बीच में भी आए थे और 1 साल से आ जा रहे हैं। जहाँ आप लोगों को पेडियाट्रिक हॉस्पिटल बनने में 1 फ्लोर बनाने में जितना खर्चा होगा, चाहे 2 करोड़ हो, 2.5 करोड़ हो, 1.5 करोड़ हो, मैं दूंगा। वाइफ हस्बैंड दोनों आए थे 1 सप्ताह पहले, बोले आप लोग काम करने में देरी कर रहे हैं, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। तो ये लोग जो वॉलंटियरली आगे बढ़ते हैं और जो मिशन लेके हम लोग चले हैं, जो एक कुणाल साहब का एक विजन है, गरीब मरीजों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, महावीर मंदिर का फिलॉसफी है, हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। हम अपने चिकित्सकगण से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करते हैं या ऑड कर्मियों से, आप लोग अच्छा से व्यवहार कीजिए। बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कैंसर के मरीज आते हैं, दुख में आते हैं, उनको आप मुस्कान, उसके चेहरे पर मुस्कान ला करके भेजिए, ये हम लोग हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं। और अंत में मैं चूँकि इतने लंबी बातें हैं, समय कम है, तो मैं ये 2 पंक्ति के साथ ख़त्म करना चाहूँगा। किसी के आँख के आंसू खंगाल कर तो देखो, किसी के आँख के आंसू को कंगाल कर तो देखो, किसी के चेहरे पर मुस्कान ला कर तो देखो, किसी के चेहरे पर मुस्कान ला कर देखो। खुद ब खुद कम हो जाएगी तेरे पैरों की जलन, खुद ब खुद कम हो जाएगी तेरे पैरों की जलन। किसी के पाँव से कांटा निकाल कर तो देखो, किसी के पाँव से कांटा निकाल कर तो देखो। धन्यवाद। महावीर कैंसर संस्थान हमारे देश के प्रतिष्ठित अस्पतालों में से एक है। हमारे चिकित्सक और उनके सहयोगी स्टाफ प्रतिदिन हजारों कैंसर रोगियों का नवीनतम विधि से उपचार करते हैं। अस्पताल में हो रहे कार्यों से अवगत कराने के लिए अब मैं मंच पर हमारे चिकित्सा निदेशक डॉक्टर मनीषा सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ। Greetings from Mahavir Cancer Sansthan. So it's a matter of great honor and pride to the entire family of Mahavir Cancer Sansthan जो हम आज visualize कर रहे हैं. Honorable Governor himself is here and he has inaugurated in succession the MRI machine, our 3rd linear accelerator and our 2nd CT scan machine. So a huge round of applause to all of us who are visualizing the historical moment of Mahavir Cancer Sansthan that has been created today. मैं शुरू करना चाहती हूँ, जैसा कि कुणाल सर हर बार कहते हैं कि मंदिर में भगवान और यहाँ भगवान के रूप में हमारे पेशेंट्स हैं, इसी मोटो से हम इलाज करते हैं. So I have been asked to just sum up the whole story of Mahavir Cancer Sansthan, the academic part, the medical part in just a couple of minutes. I'll try my level best to summarize. It is said that it is very easy to run 100 general hospital rather than to run 1 cancer hospital. क्यों? क्योंकि पहला तो the patient जो जितनी सेंसिटिव क्लास को हम डील करते हैं, एक वर्ड कैंसर ही बहुत ज़्यादा होता है पूरे परिवार को तोड़ देना. एंड दूसरा, इट इज़ सच अ एक्सपेंसिव सॉर्ट ऑफ हॉस्पिटल वेयर मशीन्स कॉस्ट इन करोड़. जो सर आपने जिसका इनाग्रेशन किया, करोड़ों उसका कॉस्ट है. जो सिटी जो 84 वाला हम लोगों ने दिखाया, दैट कॉस्ट इन करोड़.
जो कीमोथेरेपी की बात करते हैं, what I head the department of that cost the immunotherapies in lakhs. So it's such a taxing thing to deal a cancer hospital. जब सर हम ये कहते हैं कि we deal such a huge bulk of cancer patients and we rank just next to Tata Memorial Hospital as per the number is concerned, और हमारा सर D block बहुत जल्दी आएगा और I assure you सर आप जरूर आएंगे उसे भी inaugurate करने, and perhaps we will that number one cancer hospital in India. Having said that, we don't compromise the quality. And this is the very, very important fact that I just want to emphasize कि number से हम अपने quality को कभी compromise नहीं करते हैं. I'll take you to the journey of my entire department, sir, that we run in Mahavir Cancer Sansthan. The first I come with the surgery department. We have different sub-units. हमारे सारे एक्सपर्ट हैं, हमारे GI सर्जन अलग हैं, हमारे हेड एंड नेक के डॉक्टर अलग हैं, हमारे ब्रेस्ट यूनिट अलग है, हमारा न्यूरो डिपार्टमेंट अलग है, हमारा ऑर्थो डिपार्टमेंट अलग है. Now we are at par with any best hospital in India. The quality of work that we are doing intraperitoneal chemotherapy, HIPEC on the table where the patient is being operated. We are doing free flaps, we are doing microvascular surgery. पहले सर क्या होता था, अगर बोन ट्यूमर होता था पैर को काट दिया जाता था, पेशेंट विकलांग और बैसाखी पे चलता था. आज वी आर यूजिंग हाईपेक प्रोस्थेसिस विच यूज कॉस्ट इन लैक्स ऑफ रुपीज एंड पेशेंट आज वही क्वालिटी ऑफ लाइफ लीड करते हैं जो एक जनरल पेशेंट लीड करता है. किसी वजह से अगर ब्रेस्ट काट दिया जाए, ब्रेस्ट में कैंसर है, ब्रेस्ट नहीं बचाया जाए तो आर्टिफिशियल ब्रेस्ट जनरेट किया जाता है. तो दिस इज समथिंग विच रियली नीड्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन वेयर आई वर्क. थोड़ा सा दुख लगता है कभी कभी सर जब हमारा जो पैकेज होता है, जो आयुष्मान के पेशेंट्स होते हैं, परहैप कभी वो 30,000 का पैकेज होता है और कभी एक पेशेंट पे कॉस्ट आ जाता है 2.5 से 2 लाख तक भी आ जाता है. बट आई फ्रॉम द वेरी कोर ऑफ माई हार्ट वी आर वेरी ग्रेटफुल टू कुणाल सर, जो उन्होंने कहा कि अगर कोई गरीब मरीज आपके पास आया है और उसका एक्सपेंस 2 लाख 2.5 लाख बैठता है, आप बैठाएं, उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा. आप उसको ये सोच के ना टालें कि उसके पैकेज में तो 30,000 रुपया ही है, तो क्या हम उसे कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी दें? दिस इज द मोटो बिहाइंड विच वी वर्क विथ महावीर कैंसर संस्थान. सो वी जस्ट सल्यूट यू सर फॉर द वेरी मोटो दैट वी वर्क विथ. देयर इज नो compromise and there is no differentiation between any patient. वो गरीब है, अमीर है, उसके पास पैकेज है, वो कहाँ से ला रहा है, महावीर मंदिर से कितना मिला है, बट उसका क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं. So sir, this is really very taxing at times to the hospital, जहाँ हमारी बहुत सारी डिमांड्स होती है और हमको कुणाल सर को कहना पड़ता है क्योंकि कैंसर cannot make a compromise. Every day we have learning the tumor biology of the nature, and every day there's a change. There's a change of technique, change of machine, change in chemotherapy, immunotherapy, and so many things. So after coming to surgery, let me take to the department of radiation oncology. Sir, आपने आज उसी department के machine का inauguration किया. वहाँ हमारे 3 linear accelerator हैं. Perhaps Eastern India में इतने ज़्यादा patient कहीं नहीं है जो radiation department treat करता है. हमारे पास electron therapy है, brachytherapy machine है, हमारे पास cobalt है, हमारे पास DNB का टीचिंग है, एंड डे नाइट द रेडिएशन मशीन इज ऑन टू गिविंग यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द ट्रीटमेंट. आज आयुष्मान के बहुत सारे पेशेंट्स बहुत सारे अस्पताल में भरे पड़े हैं, बट जो विश्वास महावीर का है सर वो कहीं कम नहीं हुआ है. आई माई सेल्फ डील विद द डिपार्टमेंट ऑफ कीमोथेरेपी एंड हेड द डिपार्टमेंट, एंड सर आई टेल यू प्राउडली दैट दिस अस्पताल का 70 से 75 पेशेंट जो बेड है वो कीमोथेरेपी डिपार्टमेंट से भरा हुआ रहता है. एक पेशेंट जब आयुष्मान के थ्रू आता है उसके बोला जाता है आयुष्मान वार्ड डिपार्टमेंट में आपका वेटिंग लिस्ट 5 से 6 दिन का जाएगा क्योंकि हमारे पास बेड नहीं है, वी आर टोटली फुल. वो पेशेंट कहीं भी वॉक डाउन कर सकता है, वो किसी भी अस्पताल में जा सकता है क्योंकि आयुष्मान की सुविधा तो आजकल इनफैक्ट प्राइवेट नर्सिंग होम्स में भी है. बट द पेशेंट कीप्स ऑन वेटिंग. वो कहीं भी जमीन पे बैठा के इधर उधर सो के अपना टाइम काटता है क्योंकि उसको इलाज महावीर में ही कराना है. दिस इज द फेथ दैट वी हैव गिवन टू द पेशेंट. वी हैव अपकमिंग धर्मशालाज, माइट भी जो भी धर्मशाला है उतना हम बेड प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, बट वी डोंट लूज पेशेंट क्योंकि हमारे पास बेड नहीं है. मैंने अपने सिस्टम से कहा है, कुणाल सर से भी कहा है, एंड सिस्टम इज वर्किंग कि हमारा जो डी ब्लॉक है वो बहुत जल्दी से बने, बिकॉज 100 बेड की आवश्यकता बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि पेशेंट्स आर सफरिंग. बट
ट्रीटमेंट दैट वी आर इनकरिंग, जो विश्वास पेशेंट्स का है वो हम शेक नहीं होने देते हैं सर. सो दिस इज समथिंग वेरी गुड. वी आर नॉट ओनली गिविंग कीमोथेरेपीज, जो आज का नया है, हम लोग टारगेटेड थेरेपीज की बात करते हैं, हम इंट्रापेरिटोनियल थेरेपीज की बात करते हैं, हम इम्यूनोथेरेपीज की बात करते हैं, विच कॉस्ट इन लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज. बट नो वी ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज थिंग्स. लेकिन ये सब तो सर मेजर डिपार्टमेंट्स हुए, लेकिन हम लोग के साथ जो हैंड बाय हैंड जो डिपार्टमेंट्स रन करते हैं वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, ब्लड बैंक है, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है, एंड दे आर वर्किंग इन पेस विथ व्हाट वी आर ट्राइंग टू. अब रेडियोलॉजी में सर आपने एक MRI का आज जो इनॉग्रेशन किया, वी ऑलरेडी हैव 2 CT स्कैन, वी ऑलरेडी हैव अ PET स्कैन, बट वी डोंट वांट कि जो पेशेंट जिसकी ज़रूरत MRI की है हम उसको CT स्कैन से कॉम्प्रोमाइज़ कर लें. बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां अगर एक CT स्कैन है तो सारा जांच वो CT स्कैन से ही करता है. बट वी नो द डिफरेंशिएशन, द थिन लाइन वेयर अ CT इज रिक्वायर्ड, वेयर एन MRI इज रिक्वायर्ड एंड वेयर अ PET स्कैन इज रिक्वायर्ड. सर आज एक और भी बहुत बड़ा चीज़ एक होता है सर टेयर, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांस आर्टेरियल रेडियो एम्बलाइजेशन, जिसका डॉक्टर मधुकर जो हमारे हेड है वो चाहते थे कि आज आप उसके बारे में भी आप सुने उससे. बट वो भी चीज़ जो पहली बार बिहार में शुरू होगा वो भी आज महावीर कैंसर ही कर रहा है. तो वी आर इनोवेटर्स ऑल्सो. इट्स नॉट ओनली दैट वॉट वी आर ट्राइंग टू डू सम रूटीन वर्क, वी आर इनोवेटर्स. वी हैव डूइंग इंटरवेंशन रेडियोलॉजी, जो शायद ही अभी बिहार में कहीं होता है. So this is what Mahavir tried to intend, not only to deal with huge number of patients, but to give you the best quality, so that आप जब इंडिया के किसी भी बाहर सेंटर में जाते हैं, the name itself gives you a guarantee कि हम कहीं कुछ compromise नहीं करेंगे. और इसीलिए every day sir, invariably मेरे चेंबर में every day बाहर से रेफरल, टाटा मेमोरियल, वेलोर, CMC, हर जगह से रेफरल आता है कि आप बाकी का ट्रीटमेंट जाके आप महावीर में कैंसर में करवा लें. सो इसी फेथ के साथ हम काम करते हैं सर. और लाइफ इतना इजी हम लोग के साथ नहीं होता है, क्योंकि जब एक चीज़ पूरा करते हैं तो कुणाल सर के पास दूसरी चीज़ का हम लोग प्रपोजल लेके आ जाते हैं. पेट स्कैन की मैं बात करूं तो वो भी आज 9 साल पुराना हो चुका है. अब वो भी मैक्सिमम कैपेसिटी से डील कर रहा है. हमारे पास पेट स्कैन का भी नंबर वेटिंग पे जा रहा है. अब मैं किस मुंह से कहूं सर कि हमारे पास अभी एक और मशीन की ज़रूरत है. तो सर ये हमारा रिक्वायरमेंट कभी पूरा नहीं होता है. कभी एक मशीन एग्जॉस्ट करने लगता है तो एग्जिस्टिंग हमें दूसरी मशीन की ज़रूरत पड़ जाती है. तो ये जो है कैंसर, मैंने कहा बहुत ही exhausting type of treatment है, बहुत exhausting इसका budget है. But thank you Kunal sir and the entire team of my doctors and all my staff, my 2nd grade, 3rd, 4th grade and everybody, the team of Mahavir जो हम लोग साथ काम करते हैं. And we have shown what the result, what we want in form of happy faces of the patients that walk through and gives you blessings in the form of जो भगवान का जो होता है वो हम रिसीव करते हैं. तो बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच. और अब इस कार्यक्रम का वो क्षण आ गया है जिसके लिए इस सभागार में बैठे सभी लोग बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं. यह बहुत गर्व और सम्मान की बात है कि हमारे माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी आज महावीर कैंसर संस्थान में हमारे साथ हैं. आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर अपना बहुमूल्य समय हमें दिया. हम इसके लिए आपके आभारी हैं. आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मंच पर आकर इस सभा को संबोधित करें. महावीर कैंसर हॉस्पिटल या संस्थान के आज के इस कार्यक्रम में हम सभी सम्मिलित हुए हैं. मंच पर मेरे साथ बैठे हैं महावीर मंदिर न्यास समिति के सचिव, एक दृष्टि से हम सबके मार्गदर्शक, केवल पटना में नहीं बिहार के पूरे सब लोगों को एक नया सबक, एक नया मार्ग दिखाने वाले आचार्य किशोर कुणाल जी, महावीर कैंसर संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर LB सिंह, संस्थान के निदेशक डॉक्टर B सन्याल जी, संस्थान की चिकित्सा निदेशक जिनका अभी हमने बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेटिव ऐसा एक उद्बोधन सुना,
डॉक्टर मनीषा जी, संस्थान के अभी सभी यहाँ उपस्थित चिकित्सकगण, अन्य सभी कर्मी, अन्य सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मुझे लगता है मेरा यह दूसरी बार यहाँ आना हुआ है। इसके पूर्व मैं आया था और बहुत कुछ समझ नहीं पाया था, और जैसे कि सबके मन में एक आशंका होती है कि एक मंदिर का न्यास है, वो कितना काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं और करना भी चाहिए क्या। इन सब प्रश्नों के उत्तर आपके न्यास ने दिए हैं। स्वाभाविक है, इसके कोई न कोई एक मुखिया होते हैं, और मुखिया जब ठीक ढंग से मार्गदर्शन करने लगते हैं तो कहीं भी किसी की कमियां नहीं होती। आपके मुखिया आचार्य किशोर जी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने इसकी कमियां आप सबको कभी महसूस ही होने नहीं दी। केवल आपको नहीं, बिहार की पूरी जनता को भी यहाँ कमियां दिखाई नहीं दी। वास्तव में मंदिर का काम क्या होता है कि वहाँ भगवान के यहाँ जाएंगे, माथा टेकेंगे और उनसे तीर्थ या प्रसाद लेकर वापस घर पे जाएंगे आशीर्वाद लेकर। परंतु हमारे पूर्वजों ने मंदिरों की व्यवस्था इसलिए नहीं की थी। मठ हो, मंदिर हो, ऐसे संस्थान इसलिए यहाँ निर्माण किए गए कि हमको समाज की सेवा करने के लिए कुछ न कुछ प्रेरणा मिले। हम मंदिर में जाते हैं, वो पूजा पाठ तो करते हैं, परंतु पूजा पाठ के भी बाहर कुछ ना कुछ करने की आवश्यकता होती है। यह सीख मंदिर से ही मिलती है, मठों से ही मिलती है। हमारे इस देश के ऋषि मुनियों ने यही सीख हमको दी है। वो जाकर मंदिरों में बैठे नहीं, मंदिर निर्माण किए, लेकिन स्वयं जाकर मंदिरों में बैठे नहीं, समाज में जाकर लोगों की सेवा करने का व्रत उन्होंने ले लिया। आज हमारे देश में, हमारे समाज में इसी सेवा व्रत की आवश्यकता है। मैं तो ऐसे आप सब लोगों को सेवा व्रती ही कहूंगा कि सेवा का व्रत लेने का आपके मन में ठान लिया है। कुछ भी आपत्ति आने दीजिए, कुछ भी कमियां होने दीजिए, हमारे कदम पीछे नहीं जाएंगे, हम आगे ही बढ़ेंगे। यह मन में आपके भावना है, यही भावना लेकर आप काम कर रहे हैं, तब जाकर ऐसा कुछ संस्थान इतना बड़ा खड़ा रहता है। नहीं तो हम देखते हैं अनेक कुछ ऐसे संस्थाएं होती हैं, संस्थान होते हैं, और कुछ दिनों के भीतर वो नीचे आ जाते हैं, कोलैप्स हो जाती हैं। महावीर कैंसर संस्थान इस देश का चिकित्सा के बारे में नंबर 1 संस्थान बनना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा नहीं है। मैं चाहता हूं कि महावीर चिकित्सा का यह संस्थान मरीजों के प्रति, रुग्णों के प्रति सबसे अच्छी सेवा देने वाला नंबर 1 संस्थान बनना चाहिए। इसी को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर मनीषा जी सब इतिहास बता रही थी, कैसे कैसे उपकरण यहाँ आए हैं, आधुनिक उपकरण, मशीन्स आए हैं। तो और उसके पहले अपने LB सिंह जी बता रहे थे इतिहास। तो इन सब में पता चल रहा था कि आपकी मंशा क्या है, आपके मन में क्या है। आपके मन में यही है कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था, नर सेवा यही ईश्वर सेवा है। यही भावना, यही भाव आपके मन में है। इसी भाव को आप आगे लेकर जा रहे हैं।
नए मशीन क्यों चाहिए, नई उपचार पद्धति क्यों चाहिए, नए थेरापेटिक साइंस के यहाँ आने की क्या जरूरत है? मरीजों के लिए है, समाज के सामान्य जनता के लिए है। साधारण व्यक्ति भी यहाँ बिना हिचकिचाहट यहाँ आ पाएगा अपने इलाज के लिए, इस विश्वास के लिए चाहिए। और यह विश्वास देने में महावीर का यह संस्थान, कैंसर संस्थान, पूरी तरह 100% यशस्वी हो चुका है। ये पूरा श्रेय आपका है। आप इसमें बिना हिचकिचाहट, क्या होगा आगे मुझे पता नहीं, मुझे सोने के लिए समय मिलेगा, खाने के लिए कुछ मिलेगा, इसकी चिंता न करते हुए आप जिस भाव से, सेवा भाव से यहां काम करते हैं, यही तो अपने आपके इस संस्थान की नींव है, प्रगति है और लोगों का विश्वास है। आपके ऊपर जो लोग विश्वास दिखाते हैं, इसी कारण लोग यहाँ आते हैं, मरीज यहाँ आते हैं कि मेरा उपचार यहाँ सही ढंग से होने वाला है, मुझे कोई चिंता नहीं है। आप सब इतनी एक अच्छी टीम है, मैं आपको टीम कहता हूँ। आप सब अच्छी इतनी टीम है कि इस टीम के भीतर कोई आकर कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। इस टीम का उदाहरण सबके सामने होना चाहिए। और आपके टीम का मुखिया ये जहां ये बैठे हुए हैं, वो तो खुद डॉक्टर तो है नहीं, मेडिकल प्रैक्टिशनर है नहीं, परंतु जानते हैं आपको क्या चाहिए, रुग्णों को क्या चाहिए, मरीजों को क्या चाहिए, उपचार पद्धति क्या चाहिए। आज सब पूरी दुनिया में जब इन्वेंशंस हो रहे हैं, इनोवेशंस हो रहे हैं, नई नई उपचार पद्धतियां आए हैं, नए उपकरण आ रहे हैं, ऑटोमेटिक मशीन आ रहे हैं, रोबो सर्जरी आ रही है, ये सब आने के बाद भी अगर मेरे भीतर का सेवा भाव कम हो जाएगा तो ये संस्थान कहां खड़ा रहेगा। आप पूरी तरह जानते हैं कि इस संस्थान की नींव सेवा भाव के आधार पर है। इसी सेवा भाव को आप आगे लेकर जाना चाहते हैं। मुझे लगता है यहां मशीनें आ जाएंगी, लेकिन मानव का स्पर्श यहां रहना चाहिए, ह्यूमन टच। सब कुछ उपचार पद्धति हो सकेगी। इफ देयर इज नो ह्यूमन टच, एवरीथिंग विल बी कोलैप्सिंग इमीडिएटली। अगर ह्यूमन टच नहीं है, जो यहां मरीज आते हैं उनकी आस्था से अगर हम पृच्छा नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं, जानकारी नहीं लेंगे, देन एवरीथिंग फेल्स। इसीलिए हम सबकी यहाँ जरूरत है ह्यूमन टच, मानवीय स्पर्श, मानव दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण से आप काम करते हैं, इसलिए ये संस्थान दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है। प्रतिदिन इसकी आप सब जगह चर्चा होती है। मैंने जैसे कहा कि टाटा कैंसर हॉस्पिटल जो है, उनसे स्पर्धा करने के लिए हम नहीं हैं। वी आर नॉट एनी इन कॉम्पिटिशन विद देम, वी आर इन कॉम्पिटिशन, इफ एट ऑल देयर इज कॉम्पिटिशन, it is in the sector of service. We are for service and we want to be number one in service. This is what you have brought here, you have been here. आप इसलिए यहाँ आए हैं, इसलिए मैं आपके सबके चेहरों पर मैं भाव देख रहा हूँ। It is nothing less than service to the humanity, nothing less than that. आपको सब यही चाहिए, आप यही करना चाहते हैं, बाकी सब बातें दुय्यम होती है। मुझे लगता है इस दिशा में आप काम कर रहे हैं, हमारे बिहार का भाग्य है। हमारे बिहार में ऐसी एक संस्था है जो पूरे मानव के कल्याण के लिए काम कर रही है। यही भाव लेकर हमको आगे बढ़ना है। मैं चाहूँगा कि इस संस्थान में आप सबसे मिलने के लिए मैं बार बार आऊँ, आपके साथ बैठकर चर्चा करूँ, विमर्श करूँ। अगर मेरी यानी राजभवन की ओर से कुछ यहाँ इसमें मदद हो सकती है, हम कुछ हाथ बटा सकते हैं, हम हमेशा के लिए तत्पर है। इतना ही मैं कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
एवं शुभकामनाओं के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हम सभी चिकित्सकगण इन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर गरीब कैंसर मरीजों की सेवा में आगे भी समर्पित रहेंगे। और अब इस कार्यक्रम के अंत में मैं धन्यवाद ज्ञापन देने के लिए रेडिएशन विभाग की विभाग अध्यक्ष एवं एसोसिएट निदेशक डॉक्टर विनीता त्रिवेदी जी को आमंत्रित करती हूँ। Honorable Governor of Bihar, Shri Rajendra Vishwanath Arlekar ji, respected dignitaries on the dais, esteemed guests, and my dear friends. On this momentous occasion, I feel honored and privileged to propose vote of thanks. An event of this dimension cannot happen overnight. The wheel starts rolling months and months in advance. First, I would like to express my sincere thanks and gratitude to our chief guest, Governor of Bihar, Shri Rajendra Arlekar ji, for gracing the occasion and inaugurating MRI, linear accelerator machine and CT simulator machine at Mahavir Cancer Sansthan. These advancements in our medical infrastructure marks a significant milestone in our journey, providing the best possible care to our patient, and definitely it will benefit thousands and thousands of patients across Bihar. I also extend my heartfelt thanks to the strength of Mahavir Cancer Sansthan, pillar of Mahavir Cancer Sansthan, Mukhiya of Mahavir Cancer Sansthan, that is Shri Acharya Kishore Kunal sir, for playing a pivotal role in making this possible. We deeply appreciate your dedication, sir, in improving healthcare facilities in Bihar and for inspiring all of us. Today, my words are not enough to thank our working president, Shri V.S. Dubey sir, and Chairman of Purchase Committee of Mahavir Cancer Sansthan, Shri Justice P.K. Sinha sir, for their constant support and guidance. I also thank Medical Director, Director Administration, Medical Superintendent, and Dr. Madhukar Dayal, who is heading Department of Radiology, for making it possible. I also thank ICICI Bank for financial support in installing a CT simulator machine. I thank all the people from press and media, and I hope today's inaugural event will reach far beyond these walls. I thank each and everyone present here in this hall for making this event a very, very successful one. And sir, once again, I thank you, our chief guest, Shri Rajendra Arlekar ji, and we look forward to your continued support in future also. Thank you so much, sir. आप सबों से आग्रह है, माननीय राज्यपाल महोदय डिपार्चर होने के बाद बैठे रहेंगे। महावीर मंदिर का प्रसाद आप सबों को अपनी सीट पर मिल जाएगा। धन्यवाद। सभा विसर्जित होने से पहले मैं पुनः यहाँ उपस्थित सभी लोगों से आग्रह करती हूँ कि वो हमारे राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाए। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे गाये, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद। जय हिंद।
किया करते थे।